Now, till the time we have seen that what are the flight plan in front of you, okay, and how you are making a calls which are basically related to ground. We'll see some more example. I hope every one of you have done little practice, or let me know, please. Have you done it or not? Some practices from the lecture slide. Not to worry, you can tell honestly whatever it is. Have you got the time to do some practice or not? Okay, not a problem. We'll do a little here and then we'll move ahead. Use the chart number 5 and give me a flight plan. This time, Victor Tango India Zulu November will give me a plan. Give me a flight plan using all 13 parameters. For now, you can take help of class notes, or you can take help of whatever you had made it into your notes. I need a flight plan. So for that, wherever you want to see, you can take reference and then go ahead. मैं कॉल साइन फिक्स कर देता हूँ. हाँ, हाँ. Use the chart number 5 and give me a flight plan. India, July, November, over to you. Quebec Papa 789. मीन्स क्या क्या है इसका कॉल साइन? ये कॉल साइन है ना ये. आकाशा एयर. आकाशा एयर 789. 9R. 9R. Flight level. Flight level 350. Victor Alpha. Bravo Papa 2. एयरपोर्ट का नाम क्या होगा फिर? विक्टर अल्फा भोपाल ब्रावो ना. पापा कौन सा एयरपोर्ट? हाँ, भोपाल. ठीक है. While giving a plan or while reading the plan, you can simply say the name as city name. ठीक है? ओके. और लिख सकते हो अब ये बीपी या बीपीएल whatever you want. ओके. भोपाल टू चेन्नई. ठीक है. IFR. Turbulence moderate. Alternative. Hyderabad. Route. Whiskey 20. Time 9:30. Airbus 320. Say it properly about time. Okay, time 9:11. 9:12. Didn't get you. Didn't get you Niner about decimal time. 30. Acha, you want to say time is 9:30, right? So you remember while reading the time what I had taught? The time is 09:30, right? Sure. Like that. 09:30. Yes. Airbus 320. Equipment standard. और बाकी क्या तैयार नहीं आ रहा.
हाँ, just turn down the your notes. Have you available with your note? Yeah. Then count. It's 13 parameters, right? So take reference. Take help. Don't worry. Non-scheduled. Scheduled, actually. Schedule ठीक है. Input. Just have a thorough count. How many you did? Akasa Air 789er, flight level 350 from Bhopal to Chennai under IFR with turbulence medium. Alternate Hyderabad route, Whiskey 20, scheduled flight. Okay. Time of departure is 0930, Airbus 320, equipment standard. What else? क्या बच रहा है? एक पैरामीटर. Any other information? अच्छा. Right. If you have any other information, you can write. If there is none, nil. Okay. Any other Yeah. information? Okay. Okay. Now we'll have some of the questions that are related to ground that may consist of pen and mayday call. So be ready for it. Okay. And we'll look at the some of the calls which are normally being derived with such plans. The chart number is 5, everyone. Chart number is 5 from Bhopal to Chennai. Now, I'm making a little change in route. Just let me know how it is और इसका क्या मीनिंग होता है. In route information, schedule को मैं इधर लिख देता हूँ. In route information, if I write Whiskey 20, HIA, flight level 280, इसका क्या मतलब होगा? Anybody can suggest? Alpha Bravo. After Hyderabad, flight level is 210. It means generally we have been approved with a cruising flight level 35,000 feet. Sometimes you will find altitude information is written in the routes. इसका क्या मतलब होता है? भोपाल से चेन्नई जाना है. ओके. कौन सा रूट लेना है? Whiskey 20. Now the question demanded till Hyderabad, Bhopal to Hyderabad, we will go at flight level 350, and after Hyderabad, we want to go on 28,000 feet. So how we will write? We will write the same thing into the route. कैसे? Mention कर देंगे एक टर्न. Whiskey 20 से जाना है. ओके. हैदराबाद मेंशन कर देंगे. Means Hyderabad is a significant point. आफ्टर हैदराबाद इफ वी राइट 280, इसका मतलब हुआ कि हैदराबाद तक अपने ओरिजिनल अल्टीट्यूड से, हैदराबाद के बाद 280. कंफर्म इफ दिस इज क्लियर टू ऑल. राइट. Clear. सपोज रूट इंफॉर्मेशन Whiskey 20 के बदले कुछ दूसरा रखना है. हमको घूम घूम के जाना है बाया बेंगलोर. तो हाउ वी कैन मेंशन. अब मैं थोड़ा सा रूट चेंज कर रहा हूँ. ठीक है. आपके क्वेश्चन का रूट मैं वही रखूंगा, बट एग्जाम्पल के लिए आई एम मेकिंग इट अ लिटिल चेंज. इफ आई राइट Whiskey 19er, Hyderabad, Whiskey 57 South, flight level 310, Bangalore International, Whiskey 116. सब लोग ध्यान से देखो. What I had tried to write, भोपाल से Whiskey 19er के साथ चलना है. कहां तक? हैदराबाद तक. हैदराबाद के बाद कौन सा पकड़ना है? Whiskey 57 साउथ.
and flight level 310. इसका क्या मतलब हुआ? The moment I will reach Whiskey 57 South, my flight plan will be changed from 35,000 feet to 31,000 feet. On route level change. ठीक है, रास्ते में हम अपना लेवल चेंज कर रहे हैं. This may be a requirement of plan, requirement of environment, requirement of anything. ठीक है. So कभी कभी रूट के इंफॉर्मेशन में ही फ्लाइट लेवल को इंड्यूस करके लिखा जाता है, लाइक दिस ओनली. जिस भी सिग्निफिकेंट पॉइंट और रूट के बाद अगर फ्लाइट लेवल लिखा हुआ है, मींस इस रूट पे पहुंचने के बाद या इस रूट के बाद अपना फ्लाइट लेवल हो जाएगा 310, पुराना वाला आंसर. Am I clear, everyone? Then help me to write. Clear. Then help me to answer. On Whiskey 116, what is going to be our flight level? On Whiskey 116 क्या होगा? ये वाले प्लान के साथ, चेंज वाले के साथ अगर ऐसा लिखा हुआ है रूट में, तो Whiskey 116 पे हम किस फ्लाइट लेवल पर फ्लाई करेंगे? फ्लाइट लेवल 310. वेरी गुड. एंड Whiskey 19er पे कौन सा रहेगा? इसकी 19er पे फ्लाइट 350. 350. वेरी गुड. Whiskey 57 साउथ पे इसकी 57 से 350 57 साउथ. Say it again. Oh, Whiskey 57 flight level 310. 310. Over Wavadi, VABDI. Over Wavadi, it is on Whiskey 57 South. Just have a look. Over Wavadi, what is going to be our flight level? Flight level 310. 310. Very good. इसका मतलब आपके रूट इंफॉर्मेशन में जहां भी लेवल इंड्यूस किया गया है, तो उस रूट के बाद से आपका फ्लाइट लेवल ये हो गया, पुराना वाला कैंसिल. उससे पहले आपका था 35,000, उसके बाद आपका हो गया 31,000 इंक्लूडिंग दिस रूट. ठीक है. नाउ ये सब आएगा यूज, धीरे धीरे हम लोग जब भी पढ़ेंगे ये सब यूज आएगा. उस टाइम पे बस आप, जब मैं आंसर करूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों ये सब किया. ठीक है. फॉर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग slowly now only. Okay, then help me to write the answer. The question is, ठीक है, भोपाल है ना, भोपाल टावर. ठीक है. The question is, you have lined up for departure on runway 28. सॉरी, मैं चेंज करता हूँ. आप लोग क्वेश्चन लिखो, मैं बोलता हूँ ना, आप लोग पेन पेपर से नोट करो. You have lined up for departure on runway 28, experiencing a strong glare, unable to depart. कुछ अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से फिर मैं रिपीट करता हूँ. राइटिंग मेरी बहुत अच्छी बन रही है आजकल. You have lined up for departure on runway 28, experiencing strong glare. ठीक है. Unable to depart. ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Who is ready to answer then? If you have gone through the slide, this was an example there. So help me to write the answer. क्या होगा? Okay, let me write the answer then. क्या है कि आप रनवे पे अलाइन कर चुके हो फॉर द डिपार्चर. अचानक पता चला
या अचानक आपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कहीं से कुछ भी ग्लेयर, ग्लेयर मतलब होता है चकाचौंध, ठीक है, चौंध, या आंख चौंधिया जाता है ना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि वी हैव अ ग्लेयर ऑन आई, मींस विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। इन दैट केस, suppose you have receiving a glare. That glare may come from the reflection of any glass, reflection of any steel, reflection of any shiny surface. Means you are unable to make a takeoff run in this direction because something is invisible. तो आप क्या करोगे? You will request opposite end of the runway for departure. Reciprocal का यूज होगा, ठीक है? So how that call will go? Just have a look. Nothing different, nothing special. सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस एक फॉर्मेट में उतार देना है। जस्ट हैव अ लुक। भोपाल टावर, Akasa Air 789er on 123.5, Airbus 320, Bhopal to Chennai, lined up for, सब लोग नोट करना, मैं जो बोल रहा हूँ अपने पेपर पे नोट करना। लाइंड अप फॉर डिपार्चर ऑन रनवे 28, experiencing strong glare, visibility reduced, unable to depart, request, क्या होगा 28 का रेसिप्रोकल? रिक्वेस्ट रनवे 10 फॉर डिपार्चर Akasa Air 789। हो गया 10 नंबर। तो क्या बोला मैंने? that we are Akasa Air Airbus 320 lined up for departure on runway 28, experiencing strong glare, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। विजिबिलिटी रिड्यूस्ड, आंख चौंधिया गया तो विजिबिलिटी कम हो गया। अनेबल टू डिपार्ट, अगेन दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। रिक्वेस्ट रनवे 10, रनवे 10 is reciprocal of runway 28, right? So if we are at one end as runway 28, opposite end will be runway 10. So request runway 10 for departure. Here we cannot say request reciprocal runway for departure. Here we need to calculate and tell. Is this clear everyone? समझ में आया? Yes, sir. In the reply, suppose ATC don't want to permit the another end of runway. Why? Because runway end is being decided based on the wind's direction as well. So suppose ATC told negative, runway 10 not approved due, ठीक है? अच्छा, आरटी में हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में जब हम लोग यूज करते हैं ड्यू टू, ठीक है, आई एम नॉट अवेलेबल टू क्लास ड्यू टू आई एम ट्रेवलिंग, आई विल बी नॉट रिपोर्टिंग टू द ड्यूटी ड्यू टू आई एम गोइंग टू माई होम, राइट? तो नॉर्मल इंग्लिश में जहां पर हम ड्यू टू का यूज करते हैं, ड्यू टू, आरटी में हम लोग सिर्फ यूज करेंगे ड्यू टू, यूज नहीं करते, ठीक है? सो नेगेटिव, रनवे 10 नॉट अप्रूव्ड ड्यू winds direction, अफर्मेटिव सेंटेंस यूज किया, ड्यू विंड्स डायरेक्शन। इसका मतलब है कि विंड्स डायरेक्शन आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आपको रनवे 10 नहीं मिल रहा है, ठीक है? रनवे 10 नॉट अप्रूव्ड ड्यू विंड्स डायरेक्शन, भोपाल टावर। And in the readback, how you can give? Simple. रीडबैक में हमेशा एक्नॉलेजमेंट देना होता है प्लस पैरामीटर्स का रीडिंग। तो यहाँ पे क्या किया उसने? डिनाई किया अप्रूवल, तो यू विल गिव एज अ रीडबैक रनवे 10 नॉट अप्रूव will
वेट फॉर इम्प्रूवमेंट, इसको अच्छे से सब लोग स्टैंडर्ड टर्म की तरह लिख लो। विल वेट फॉर इम्प्रूवमेंट कई बार यूज होगा। अगर कुछ भी उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है फॉर अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम, देन वी आर यूजिंग विल वेट फॉर इम्प्रूवमेंट। आकाशा एयर 789, जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तब तक हम इंतजार करेंगे, आइदर वेदर सिनेरियो में, आइदर किसी भी नोटम में, आइदर किसी भी होल्डिंग इंस्ट्रक्शंस में, जहां आपको बोला जाएगा रुको। ठीक है, तो जब तक उस कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक हम अपना पोजीशन होल्ड करते हैं। सो ATC told negative runway 10 not approved, so we had given a readback, runway 10 not approved, we'll wait for improvement, means जब तक ये सन का डायरेक्शन हमारे आंख पे डायरेक्ट ग्लेयर बना रहा है, the moment he will change here and there, if the situation will improve, if I am able to see the runway again, I will depart. So we wait for improvement. किस चीज का improvement? Situation को improve होने का wait करेंगे. Done? Now somebody please tell me why in the readback I have not used the term negative. Negative is not a parameter, right? Negative is just a denial that ATC told. So in the readback, need not to write negative. Simply focus on parameter. Runway 10 not approved. उसने कहा था बिकॉज ऑफ विंड्स, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा सिर्फ पैरामीटर फोकस करेंगे। रनवे 10 अप्रूव नहीं दिया, किसी भी रीजन से नहीं दिया, वो आपको मुबारक, बट आई विल वेट फॉर माई इम्प्रूवमेंट। द मोमेंट विंड्स डायरेक्शन will not going to change, the moment glare situation will be improved, I will start take off run. Is that clear everyone? पक्का समझ में आया? हाँ सर। Okay, you can say affirm or negative, that will be going to use of phrases again. Okay, so this was the another condition what can be faced on the ground. Now the question is, you have lined up for departure on runway 24. Okay, sighted flock of bird ahead. Who is going to answer it? The simple question. You have departed, you have lined up for departure on runway 24. Sighted flock of bird ahead. Try answering, anyone? Very simple, nothing to think even. Anybody? Would you like to make a try? If you do participate, then only you will learn something. सुन के आरटी नहीं क्लियर होता, आरटी में आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, सुन के, समझ के, पढ़ के आरटी इज नॉट गोइंग टू मेक इट। तो आप परफॉर्म, आपको लगेगा कि आई कैन डू इट, बट आप नहीं कर पाओगे, तो आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, एनीवन? टेक अ ट्राई, डोंट वरी, टेक अ ट्राई। हाँ, Akasa 789 on 1 2 Akasa 3. Air. Akasa Air 789 on 1 2 3 decimal 5 Airbus 320 from Bhopal to Chennai, lined up for departure on runway 24. Sighted flock of birds. Request Flock of birds ahead. ahead. Request for birds
scaring team, Akasa Air 789er. Very good. In the reply, it is told Akasa Air 789er, bird scaring team is on the way. Bhopal Tower. Bhopal Tower. Okay. Expecting bird scaring scaring team, Akasa Air 789. Wait. One. ठीक है. अगर वो कुछ टाइम लाइन देगा, ठीक है, 1 minute, 2 minutes, जो भी हो, then we can say कि expecting अच्छा. this in this minute. When he is simply saying on the way, means भेज रहा है, पहुंच जाएगा. So we can also simply give a readback of the same. Bird scaring team on the way. Akasa Air 789. ठीक है? Okay. ठीक है. Thank you. Bird scaring team is on the way. Akasa Air 789. Or the bird scaring team he is sending. This is not any kind of approval, not any kind of clearance, not any kind of permission. So you can also say Roger, ठीक है, भेजो. ठीक है. इस केस में आप कुछ कर तो नहीं रहे हो, वो टीम भेज रहा है, आप इंतजार कर रहे हो. And the sending of bird scaring team is neither a approval, neither a clearance, neither a permanent parameter. This is a duty that he is going to perform. So you can also say Roger. यहीं पे तो Roger का यूज होगा. Roger का मतलब क्या होता है? ओके. कि आप बर्ड स्क्रीनिंग टीम भेज रहे हो. ओके. इसके अलावा हम कुछ अपने आंसर में नहीं बोला, राइट? आप बर्ड टीम भेज रहे हो, ठीक है, भेज दीजिए. So you can also simply say Roger, Akasa Air 789. Clear? Clear. Okay. Now we'll move to the next example. Okay, there we are going to see some of the इमरजेंसी सिचुएशन इंड्यूस्ड एयर. मेडिकल हमने देख लिया था, आसपास फायर लगा वो देख लिया, फ्यूल लीक हो रहा है देख लिया. नाउ द क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग टैक्सी you have received brakes hot indication. During taxi, you have received brakes hot indication. Now, the brake temperature is being measured in some of the aircraft. Okay, very small aircraft did not pay that much attention towards the brake seating and all. Okay, but आपको एक ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट में, ठीक है, जो भी आपका एयरबस है और जनरल एविएशन में भी जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ वेट एंड रेंज, जहां पे किसी एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट अनाउंस किया जाता है. सो व्हेन यू लुक एट द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट, देयर दे आर मॉनिटरिंग द ब्रेक्स हॉट एज वेल. ठीक है, आई एम शोइंग द स्क्रीन. This is an aircraft which is not a transport category aircraft. मैं स्क्रीन शेयर करके पूरा दिखाता हूँ. Confirm if this screen is visible. Cockpit दिख रहा है सबको? Yes, no, anything? Is this cockpit visible? रोड वीडियोस दिख रहे हैं.
हाँ दिख रहा है सर, बट वो व्हाइट पेज पे का क्लियरली पूरा नहीं है। हाँ चलेगा चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। जूम इन करने पे दिख रहा है थोड़ा। Now दिख रहा है। here, engine parameter. Just have a look on engine parameters: torque, ITT, propeller का speed, N1 oil pressure, temperature, fuel flow, SAT standard air temperature, ram air temperature। ठीक है, तो ये सब आपको दिख रहा है, bleed, door unlock, fuel unlock, ये सब दिख रहा है। This is the cockpit layout of one smaller aircraft, ठीक है, which is not a transport category aircraft। तो यहाँ पे उन्होंने ब्रेक्स का टेम्परेचर मॉनिटरिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपको इस पैरामीटर में कहीं भी ब्रेक कंडीशन नहीं दिख रहा है, राइट। बट जस्ट हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द बिगर एयरक्राफ्ट। ठीक है, यहाँ देखो, दिस इज वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट, बम्बार्डियर। ठीक है, ग्लोबल सीरीज। हियर यू कैन सी along with other parameters, just have a look, ये भी टेम्परेचर, ITT, फ्यूल टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, डोर्स के कंडीशंस, ये सब मेजर कर रहा है, योर flight controls position and all. Here they are also monitoring the brakes temperature, right? Are you able to see it here? Had zoomed it a lot. Yes sir. So when you are operating a transport category aircraft, the additional parameters are brake temperature as well. Now there may be a different set of monitoring mode in aircraft to aircraft. Monitoring mode means, I mean to say, suppose in this image you have seen, it was written as 2, right? Brakes temperature 2, total 4 wheel थे, चारों में ब्रेक लगे हैं, so it was written as 2 and it was in green zone. So in this aircraft may be a scene, if brake temperature becomes high, that will indicate 3 and that will becomes red, or that might indicates 5. ठीक है, that may be a scale of 5. हो सकता है कि इस एयरक्राफ्ट में स्केल हो 5 का, अप टू 1 and 2 ग्रीन रेंज, ब्रेक सेफ, 3 कॉशियस, येलो रेंज, 4 and 5 ब्रेक्स हॉट। ठीक है, ये हो गया एक मॉनिटरिंग का पैरामीटर। किसी किसी एयरक्राफ्ट में देर में भी अ कलर इंडिकेशन ऑल्सो, जब तक ग्रीन रेंज में है ओके, येलो होने लगा मीन्स ब्रेक्स हीट इंक्रीजेस, रेड होने लगा it means brakes become hot. So there may be a different kind of indication setup in aircraft to aircraft, but a transport category aircraft measures the brakes indication. A smaller aircraft, they didn't even bother about that. Okay, so the question is, you have received brakes hot indication. कभी कभी मैं क्वेश्चन में ना यहाँ पे यूज करता हूँ रिसीव्ड, ऑब्जर्व्ड, रिपोर्टेड। इन सबको अगर आप लोग डीपली पढ़ोगे तो आपको लिंक मिलेगा किस चीज का, सिचुएशन का। ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन क्या है? दैट इज एन इंडिकेटर। तो इंडिकेशन आप रिसीव करते हो, ठीक है। सामने का वेदर कंडीशन आप ऑब्जर्व करते हो। केबिन का कोई भी घटना या केबिन का कोई भी सिचुएशन आपको रिपोर्ट किया जाता है। So the English they are using, they are pretty much indicative itself कि questions का सिनेरियो क्या बन रहा है। Received means आपको कॉकपिट में किसी न किसी इंडिकेशन के थ्रू पता चला कि ब्रेक गर्म हो चुका है, ठीक है। So how that call go? Anyone wants to make a call? If you have gone through the conditions, sorry, if you have done practice a little, or let me give an example. Achha, you are giving. Go ahead. Go ahead. Akasa But Air. you have started wrongly. You have started wrongly. Why Akasa Air directly? This is W2. हाँ क्या कहा सर Yes, go आपने? ahead. Go ahead. Akasa Air is W2. So your question would not be started with W2, right? Okay. भोपाल टावर। भोपाल में ग्राउंड है ही नहीं। भोपाल टावर।
अच्छा, वाइल मेकिंग आंसर चार्ट को हमेशा सामने रखिए, ठीक है, और अपने एरोड्रोम पे नजर मारिए, आपसे आंसर गलत होगा ही नहीं, ठीक है। एग्जाम में भी चार्ट को साथ में रखा जाता है। ओके। भोपाल टावर, Akasa Air 789er on 123.5 Airbus 320। अरे नहीं, सिर्फ पैन पैन कॉल है ये ना, सॉरी गलत हो गया। वेरी गुड। तो अभी गलत हो गया तो क्या करोगे? करेक्शन। करेक्शन में तो मैंने एयरबस 320 काट दिया, फिर 5 बार करेक्शन बोल देना, एक एक करके सब खत्म। नहीं, नहीं नहीं नहीं। डिसरिगार्ड, रिमेंबर, कैंसल, डिस्क्रेडिट। ठीक है। डिसरिगार्ड। बट डिसरिगार्ड बोलने का भी एक मेथड है, राइट? भोपाल टावर डिसरिगार्ड, भोपाल टावर डिसरिगार्ड, ठीक है। ओके। आकाशा भोपाल एयर टावर, 789er। भोपाल टावर डिसरिगार्ड Akasa Air 789er। हाँ, मतलब आकाशा 8789er ने जो कॉल दिया उसको पूरा कैंसिल कर दिया गया, हम्म। ठीक है। गो अहेड, फिर वेरी गुड। पैन 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 भोपाल टावर Akasa Air 789er on 123.5 Airbus 320 present position on runway। हाँ, रनवे पे टैक्सी कर रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन में क्या है? ड्यूरिंग टैक्सी। टैक्सी है, ओके। प्रेजेंट पोजीशन ऑन डिसरिगार्ड पूरा प्रेजेंट का पूरा पोजीशन ऑन एप्रॉन। नहीं, उतना ही। डिसरिगार्ड में पूरा, नहीं नहीं, करेक्शन में ये लास्ट, करेक्शन। ठीक है। प्रेजेंट पोजीशन ऑन एप्रॉन 3। टैक्सी वे कर लो, एप्रॉन 3 पे तो टैक्सी कर सकते हैं, ओके चलिए, एप्रॉन 3। टैक्सी वे ब्रावो। आराम से, अब आराम से। टैक्सी वे ब्रावो ठीक। कैन नॉट बी ऑन एनी एप्रॉन, राइट? वहां पे क्या होता है? रैम्प। तो इफ इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बार बार गलत होने से थोड़ा सा शैटरिंग हो जाती है माइंड में, जानते हुए भी मिस्टेक होता है, नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा एक सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग। क्वेश्चन में क्या है? टैक्सी। सो इट विल बी वेरी गुड इफ वी से somewhere on taxiway, present position on taxiway, Charlie. Now, चार्ली। अब ओके। आराम हम्म। then received received breaks hot indication। This may be serious safety hazard or fire hazard। Request appropriate action। Akasa Air 789। ठीक है, ओके। आपने थोड़ी दूर तक तो सही रखा अपना पैरामीटर, लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, नॉट अ प्रॉब्लम, गुड चल बाय द वे, ठीक है। अभी क्या है? व्हेन यू आर सेइंग कि रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, जब प्रॉब्लम किसी दूसरे के साथ हो, उसको हेल्प चाहिए, यहाँ तो आप खुद ही फंसे हुए हो, आप ही का ब्रेक शॉर्ट हो गया। नाउ सबसे पहले क्या आपको चाहिए? फायर फाइटिंग सर्विसेज फॉर इंस्पेक्शन और क्विक रिस्पॉन्स टीम, बिकॉज देयर में दैट में कैच फायर।
यहाँ तक आपने अच्छा सोचा, वेरी गुड, कि दैट में कैच फायर. नाउ इफ यू सीन्स कि दैट में कैच फायर, दिस इज योर एयरक्राफ्ट, देन यू नीड अ सपोर्ट. तो किस काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड टू मेंशन एप्रोप्रिएटली, राइट? जस्ट हैव अ लुक. वेरी गुड, गुड ट्राई बाय द वे. आई एम गिविंग अ कॉल, हैव अ लुक आउट. pan 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 Bhopal Tower, Akasha Air 789er on 123.5. Current position on taxiway Charlie. Received brakes hot indication in cockpit. मैं cockpit का short form लिख रहा हूँ, CKPT, cockpit. Request firefighting services and investigation team to monitor the brakes condition. अब इस इन्वेस्टिगेशन टीम में हो सकता है वो QRT को भेज दे, या आप ही की कंपनी के किसी इंजीनियर को बुला ले, जाओ अपना जहाज देखो क्या हुआ है. ठीक है, फायर फाइटिंग सर्विसेज क्यों? क्योंकि इफ दे मे कैच फायर, आप उसको बुझाओ. ये तो हो गया आपका रिक्वेस्ट. अब अपना पोजीशन तो आपने बता दिया, टैक्सी वे चार्ली. बट क्या है कि ड्यूरिंग टैक्सी आप चल रहे हो, अगर आप रुकोगे नहीं तो यहाँ जब तक चार्ली पे सपोर्ट पहुंचा तब तक आप डेल्टा पे पहुंच चुके हो. सो आपको रुकना भी है. बट व्हेन, अब देखो ब्रेक शॉट कब होता है? देयर इज टू पोर्शन इन द ब्रेक, वन इज स्टेटर एंड वन इज रोटर डिस्क ब्रेक में. ठीक है, स्टेटर रोटर आप सबने माइट भी देखा होगा अगर आपने ग्राउंड पे काम किया हो, कि दिस इज वेरी कॉमन. डिजाइन थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट स्टेटर और रोटर में ही ना क्या होता है कि जो स्टेटर होता है दैट इज स्टेशनरी, एंड जो रोटर होता है दैट रोटेट्स विद द व्हील. और व्हेन स्टेटर इंगेजेस द रोटर, तब जाके ब्रेक अप्लाई होता है. एंड देयर इज अ वेरी फाइन गैप इन बिटवीन टू पार्ट्स, रोटर्स एंड स्टेटर्स के बीच में बहुत थोड़ा सा गैप होता है. When the gap reduces, friction increases, and due to this friction, brakes hot indication came. ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रेक हीट हो रहा है. क्यों हीट हो रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अब अगर आप ब्रेक अप्लाई भी करोगे तो फ्रिक्शन तो और बढ़ जाएगा. ठीक है, एक पायलट अपने एयरक्राफ्ट को हर एक एस्पेक्ट से समझता है. यहां तक हमने क्या देखा कि ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन आया, फायर फाइटिंग सर्विसेज और इन्वेस्टिगेशन टीम चाहिए. क्यों चाहिए? बाद की चीज के लिए आके मॉनिटर करेगा कंडीशन. बट सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? हमको रुकना है, टू स्टॉप. लेकिन ब्रेक भी नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि जिस रीजन से ब्रेक हीट हो रहा है हम उसको रिपीट नहीं कर सकते. तो उसमें एक सॉल्यूशन निकालेंगे, स्टॉपिंग स्लोली. ठीक है, ऑन टैक्सीवे चार्ली, यानी मैं धीरे धीरे रुक रहा हूँ, सडनली रोक नहीं सकता क्योंकि ब्रेक ऑलरेडी हीट है, फायर पकड़ सकता है. तो हो सकता है मैं धीरे धीरे रुक रहा हूँ तो थोड़ा आगे पीछे करंट पोजीशन से हो जाऊं, थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ. बट टैक्सी वे चार्ली पे ही मैं धीरे धीरे रुक रहा हूँ. स्टॉपिंग स्लोली ऑन टैक्सी वे चार्ली. होल्डिंग प्रेजेंट पोजीशन, ये सब अपने अपने नोट करो. होल्डिंग प्रेजेंट पोजीशन, आकाशा एयर 789. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजों को, ताकि आप ये समझ पाओ कि कमांडर्स के क्या क्या रोल होते हैं, कितने सारी चीजों को उसको देखना पड़ता है. पैन पैन रिपोर्ट किया क्योंकि ब्रेक हीट था. उसने बताया कि ही इज ऑन टैक्सी वे चार्ली. ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन मिला उसको कॉकपिट के थ्रू. ही इज रिक्वेस्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज कि अगर फायर हो जाए तो फायर फाइटिंग सर्विसेज उसको कंट्रोल करे, प्लस इन्वेस्टिगेशन टीम टू मॉनिटर द ब्रेक्स कंडीशन. क्या घिस चुका है, क्या धुआं दे रहा है,
क्या कोई लिक्विड आ गया बीच में? ब्रेक कई बार हाइड्रोलिक लीक होता है तो स्टेटर और रोटर के बीच में हाइड्रोलिक फ्रिक्शन के कारण स्मोक देने लगता है, ठीक है। और तो ये सब कंडीशन थे जो कि ब्रेक्स हॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप रुक भी नहीं सकते सडनली। व्हाई? बिकॉज अगर आप ब्रेक मारोगे तो पहले से ही फ्रिक्शन से हीट हो रहा है, वन मोर टाइम यू विल हैव हीट। तो स्टॉपिंग स्लोली ऑन टैक्सीवे चार्ली, धीरे धीरे ब्रेक मारोगे। दिस स्लोली स्टॉपिंग मोमेंट may take your aircraft 10 or 20 feet ahead, but that is not a problem because you had already reported stopping slowly, holding current position with Tango 78, sorry, Akasa Air 789. Confirm if this is clear. समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है। So you need to sometimes looking at the aspects. This is not a very tough job, by the way. ये कोई tough काम नहीं है. These are the general things. But as a commander, आपको सब कुछ compile करने आना चाहिए। ये हो गया तो क्या हो गया? As a engineer as well. Suppose आपको कॉकपिट में कोई एक इंडिकेशन आया, just for a moment, कि take a real scenario कि स्टार्ट नहीं हो रहा है इंजन, ठीक है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको वहां से डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, वेदर दैट इज ए स्टार्टर जनरेटर, वेदर दैट इज ए बस टाई, वेदर दैट इज ए कनेक्टर, वेदर दैट इज ए यू कैन से प्रॉब्लम इन रिले, वेदर दैट इज ए प्रॉब्लम इन स्विच, किधर प्रॉब्लम आ रहा है। सो जहां भी प्रॉब्लम आया उसके रिगार्डिंग आप वहां से उसको पहले चेक करते हो कि इफ दैट इज गुड देन ओके, इफ दैट इज गुड देन ओके। हियर आल्सो यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। ब्रेक्स हॉट हुआ, क्या क्या सिनेरियो, अब वो क्या करता है, पायलट तो ऑपरेट करता है, क्या क्या हो सकता है। ब्रेक शॉर्ट हुआ तो सबसे पहले रुकना पड़ेगा, तभी तो टैक्सीवे पे सपोर्ट मिलेगा। रोक नहीं सकते क्योंकि ब्रेक पहले से ही हीट है, तो धीरे धीरे रुकेंगे। डन। सपोर्ट किस किस चीज का चाहिए? फायर फाइटिंग सर्विसेज का एंड इन्वेस्टिगेशन टीम का, ठीक है। सपोज आपने सिर्फ फायर फाइटिंग सर्विसेज मांगा, वो आके बोल देगा फायर नहीं लगा है, तो क्या आप फिर से एप्रोन तक आओगे? फिर रास्ते में गर्म हो जाएगा। तो आपको इन्वेस्टिगेशन टीम भी चाहिए जो आके वहीं पे तुरंत देख ले कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बताओ। कुछ वहीं पे इमीडिएट टेढ़ा बेढ़ा करके उसको ठीक किया जा सकता है, या फिर दे विल टेक यू टू द एप्रॉन बट अंडर मॉनिटरिंग। So you need an investigation team to monitor the brake condition. ठीक है, कई बार false indication भी आते हैं. So let the investigation team decide what kind of serious problem is there. Is that okay? Good to go ahead? ठीक है. During taxi, सारा कांड टैक्सी के टाइम पे ही होता है, ठीक है. During taxi, you have observed, ठीक है, you have observed birds roaming around a dead body, roaming around a dead body of animal. बस वो एनिमल का डेड बॉडी कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो, कुछ पता नहीं. Random question. Now go ahead. Birds roaming around a dead body. Anyone try to give a call? Let's make a try. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती होगी, गलती पे तो पनिशमेंट है नहीं इधर. Just have a try. क्या कर सकते हो एज अ पायलट और एज एन एविएटर? Anyone? क्या हो गया अगर आप कहीं से गुजर रहे हो, आपके आसपास डेड बॉडी के आसपास बर्ड घूम रहे हैं, रोम अराउंड कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस? ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, लेट मी गिव मी द कॉल. बर्ड घूम रहा है, दैट में एंटर्ड इनटू एनीवन्स इंजन, किसी के इंजन में घुस गया तो बस खेला खत्म.
अब बर्ड हिट रिपोर्ट करो, उसका इंस्पेक्शन करो, सारे फैन ब्लेड्स का कंडीशन चेक होगा। सबसे पहले तो वो फ्लाइट गया, एयरक्राफ्ट नहीं गया, वो फ्लाइट कैंसिल। ठीक है, तो दैट मे बी अ सिग्निफिकेंट change into our operation. So let's it not be a significant change over us. Let it control before it going beyond into our hands. Is the barking of the dog disturbing you much? समझ में आ रहा है क्या? कंफर्म नहीं? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है क्या? नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। अब क्या हो गया, आसपास बर्ड मंडरा रहे हैं, तो बर्ड हिट हो इससे पहले हमको कंट्रोल कर लेना है। उसका सॉल्यूशन क्या है? बर्ड स्केरिंग टीम। तो ये जाएगा पैन पैन से, पैन 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 पैन, भोपाल टावर, Akasha Air 789ers on 123.5, taxiing on, देखो आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया, taxiing on taxiway Delta, sighted flock of bird roaming around a dead body, flock of bird roaming around a dead body on apron 6, request correction. This may be a safety hazard. Request appropriate action. Akasha Air 789। बाहर कहीं बर्ड मंडरा रहा है, आपके लिए इमीडिएट लॉस नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने रिपोर्ट किया कि फ्लॉक ऑफ बर्ड इज रोमिंग अराउंड ए डेड बॉडी। वो डेड बॉडी कहाँ पे है? एप्रॉन 6 पे, या फिर नियर टू एप्रॉन 6, आसपास, लेफ्ट ऑफ एप्रॉन 6, बाएं साइड में, राइट ऑफ एप्रॉन 6। इस तरह से आप उसका लोकेशन बता सकते हो। ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो किस पोजीशन पे है। आपने अपना पोजीशन बताया कि आई एम एट टैक्सीवे डेल्टा, देन जो रीजन है वो कहाँ पे हो रहा है, दैट इज ऑन एप्रॉन 6। दिस मे बी अ सेफ्टी हजार्ड, पता नहीं किसके इंजन में घुस जाए। रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। क्लियर? क्लियर। I hope कि when I am writing the answer, you all are also making a note. यस ठीक है, आप सर। लोग नोट बना रहे हो? वेरी गुड। This will help you to understand the answer type at least. आपको अगर लिखने की प्रैक्टिस होगी, then आपको बाद में फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस केस में क्या हो रहा था, उस केस में क्या हो रहा था। At least you will have something in written. Okay. Okay, so these are the things which can come at an example. Let me just have a look on my class slide also, what are more important to discuss in the class. But I'll also help कि आप लोग I'll also hope कि आप लोग भी अपने अपने घर में whenever you are having free time आप प्रैक्टिस करो खुद से। ठीक है, ओके। अभी दो कंडीशन देखेंगे। रंगीन क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, डन। नाउ कुछ छोटी छोटी चीजें कैसे, क्वेश्चन में कई बार आपको क्या रहेगा कि ड्यूरिंग योर प्री फ्लाइट चेक, ठीक है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरिंग योर प्री फ्लाइट चेक, ये सब क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मिलेगा। इस क्वेश्चंस का कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको वहां पे नए मिलेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। उसके आंसर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसा मिलते हैं आप उसको एज इट इज कॉपी करोगे
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आंसर में समझने जैसा भी कुछ नहीं है। दोज आर सिंपल बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस जिसका आंसर एक पायलट अपने सूझबूझ से समझदारी से दे सकता है। तो एक बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन हम यहां भी देखेंगे। क्या है? यू ड्यूरिंग योर प्री फ्लाइट कम्युनिकेशन चेक, one aircraft continuously interrupting your call. टेक एक्शन, ये क्वेश्चन रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट का ए करके ये दे देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट जैसा कुछ है नहीं। आप प्री फ्लाइट चेक कर रहे हो, कोई दूसरा एयरक्राफ्ट बार बार परेशान कर रहा है आपको, तो फोन करके गरिया दें या उसके कंपनी को बोल दें संभाल लो अपने पायलट को। दिस इज बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन कि क्या करोगे, आपको कोई परेशान कर रहा है तो दो रास्ता, या तो उठा के पटक दो, लड़ाई कर लो उससे फटक से, या फिर उसको इग्नोर कर दो, करते तो तुम बदमाशी, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको फर्क पड़ रहा है एंड यू नीड टू रिपोर्ट हिम एज वेल कि भाई आप मुझे परेशान कर रहे हो, डोंट डू दैट। So how that call answer will go? Just have a look. एकदम सिंपल आंसर है। These are the behavior based answers कि पायलट क्या रिस्पॉन्स करेगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो उसका आंसर वहां पे जैसा दिया हुआ है उसको समझना और एक स्टैंडर्ड आंसर आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक आइडियल रिप्लाई है। हाउ? जस्ट हैव अ लुक। सपोज वो जो एयरक्राफ्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन है विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो। सो यू कैन गिव अ रिप्लाई विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो आकाशा एयर 789er बिफोर ट्रांसमिटिंग, ठीक है, मेक श्योर channels are not occupied। क्या है कि आप जब कॉल दे रहे हो उससे पहले आप ये जरूर देखो कि वो चैनल ऑक्यूपाइड नहीं है। अगर आप बहाना बनाओगे कि मुझे नहीं पता चला कि आप कॉल कर रहे थे, तो यू आर मेकिंग अ रॉन्ग एक्सक्यूज। क्योंकि जैसे ही आप टावर के फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर रहे हो, इफ एनी ऑफ द स्टेशन इज कॉलिंग द टावर, यू विल ऑल्सो हियर दैट। सो यू कैन नॉट से कि मुझे पता नहीं था कि चैनल ऑक्यूपाइड है। दिस इज योर इंटेंशन। लेकिन वी आर प्रोफेशनल, आपको गाली तो दे नहीं सकता और ना ही कॉकपिट से निकल के आपको पीट सकता हूँ। रोड पे होता है ना, कई बार टक्कर लग जाती है तो लोग गाड़ी से उतर के पीट देते हैं डंडे से, गेट खोल के बाहर निकलेंगे और लड़ लिए। बट इन एयरक्राफ्ट वी कैन नॉट डू दैट। सो we'll make some suggestion wisely. Before transmission, make sure channel are not occupied. अगर वो occupied है तो प्लीज कॉल मत करो, ठीक है। Sometimes simple sentences hurts more. So this is the answer. Before transmitting, make sure channels are not occupied. Clear? Everyone, is that okay? Yes, sir. Suppose during your pre-flight, one aircraft is interrupting your call continuously and you face इंटरफेरेंस। एक वर्ड मेंशन रहेगा इंटरफेरेंस, कि आपको बार बार परेशान कर रहा है। कौन सा एयरक्राफ्ट है यहाँ पे वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे उस एयरक्राफ्ट का नाम पता नहीं है आपको। अगर उस एयरक्राफ्ट का नाम पता था तब तो आपने सीधे सीधे उससे पंगा ले लिया, लिमा किलो किलो डोंट डिस्टर्ब। बट अभी कंटिन्यूअसली आपको डिस्टर्ब कर रहा है एंड दैट इज एन इंटरफेरेंस, लेकिन आपको उस एयरक्राफ्ट का नाम नहीं पता है। तो इस केस में आप क्या करोगे? कंप्लेन कर दोगे। किसको? एटीसी को। हाउ? जस्ट हैव अ लुक।
भोपाल टावर आकाशा एयर 789 एक्सपीरियंसिंग, अच्छे से नोट करना सब लोग, एक्सपीरियंसिंग QRM। अब बोलोगे QRM क्या है? QRM मीन्स इंटरफेरेंस बाय ह्यूमन बीइंग। मीन्स अगर आदमी जानबूझ के इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, देन दैट इज रिपोर्टिंग अंडर अ टर्म QRM। यहाँ पे वो एयरक्राफ्ट अननोन था, नहीं तो आप उसको 1 to 1 देख लेते, अकेले में मिल लेते उससे किलो। प्लीज मेक श्योर चैनल्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। बट इन दिस केस उस एयरक्राफ्ट का नाम आपको पता नहीं है, तो आप टावर को रिपोर्ट करोगे एक्सपीरियंसिंग QRM मतलब इंटरफेरेंस बाय ह्यूमन बीइंग, कोई तो परेशान कर रहा है हमको, ठीक है। देन ATC विल टेल ऑल स्टेशंस प्लीज गो ऑन म्यूट, ठीक है, ऑल स्टेशंस गो ऑन स्टैंड बाय। तब आपका नाम लेके बोलेगा आकाशा एयर 789 गो अहेड। तो QRM का मतलब इंटरफेरेंस बाय ह्यूमन बीइंग। अब आप बोलोगे सर QRM क्या है, क्यू कोड पढ़ना पड़ता है क्या? यस, देयर आर सम क्यू कोड्स, ठीक है, इन ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन मेंटेनेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है, और मैं आपको क्यू कोड दिखा रहा हूं सिर्फ नजर मारने के लिए। आप उसको देखने के बाद इग्नोर भी कर दोगे ना, तो आपका लॉस है ना मेरा लॉस है, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जैसे मैंने QRM बोल दिया, तो उनको सिर्फ QRM का मीनिंग नहीं जानना है, उनको दुनिया भर के क्यू कोड्स का मीनिंग जानना है, ठीक है। आई हैव फेस्ड सच प्रॉब्लम्स इन प्रीवियस सेशंस। अगर उनको मैं सिर्फ ये बता के छोड़ देता हूँ कि QRM मीन्स इंटरफेरेंस बाय ह्यूमन, तो बोलते हैं नहीं सर मुझे और बताओ, QRM के अलावा कितने सारे क्यू कोड्स हैं, तो लो पकड़ो। मेरा क्या पढ़ाना, तो मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, रिटेन करना आपका क्या है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि QRM मतलब इंटरफेरेंस मेड बाय ह्यूमन बीइंग, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑपरेशंस के बहुत सारे क्यू कोड है, आपको अगर पढ़ने का मन है तो ये ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इन द मिसलेनियस टॉपिक डायग्राम वाले में, ठीक है। एज अ नेम क्यू कोड आपके ड्राइव लिंक पे अवेलेबल है, आप एक एक क्यू कोड को बैठ के रखते रहिए, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और डे टू डे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली QRM इज इंपॉर्टेंट। QRM मीन्स human made interference, you can see, right? Then there are QRL, QL, QRK, इसका क्या मीनिंग है, not required for the examination point of view, but if you want to improve your knowledge definitely you can go ahead, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। So if that is QRM means human made interference, कि आपको परेशान कर रहा है, बट कौन सा स्टेशन आपको परेशान कर रहा है ये आप श्योर नहीं हो, तो आप बोल दोगे एक्सपीरियंसिंग QRM। डन? Yes, know anything everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now we are going to have a look on very important example. Why I'm saying very important example? Because this is really an important example. क्या है? During take off run, ठीक है, aborting take off, कंडीशन क्या है? abort take off और abandon take off। आप अपना टेक ऑफ रोक रहे हो या अबेंडन कर रहे हो, मतलब कैंसिल कर रहे हो, दिस इज अ प्रॉब्लम। डू यू नो दिस इज अ प्रॉब्लम? व्हाई? आप एक बार टेक ऑफ अबॉर्ट करो, आपको वापस एप्रन पर लाके पटक देगा, जाओ थोड़ा रेस्ट करो, बहुत बदमाशी कर लिए, ठीक है। तो अबॉर्ट टेक ऑफ और अबेंडन टेक ऑफ नीड्स एन इन्वेस्टिगेशन, किस चीज का? ब्रेक्स कंडीशन का, ठीक है, एक्चुएटर्स का, लैंडिंग गियर एरिया का, अबॉर्ट टेक ऑफ। इफ दैट इज नॉट अंडर कंट्रोल फर्स्ट, अगर आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं इट्स ओके, बट अगर आप कंडीशन वाइज टेक ऑफ अबॉर्ट कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन लगेगा। सो
The question is, during takeoff roll, observed, खिड़की से बाहर देख रहे हो तो observed one aircraft came in front of you. अचानक से कोई दूसरा एयरक्राफ्ट आ गया आपके सामने टेक ऑफ रन के सामने, और वन व्हीकल या फिर वन फ्यूल टैंकर केम अहेड ऑफ यू, आपके सामने आ गया सडनली। इसको बोलते हैं रनवे इनकर्शन। ठीक है, रनवे इनकर्शन, समथिंग एंटर्ड इनटू रनवे एंड यू वेयर इन अ टेक ऑफ रोल। तो आपको तो कैंसिल करना पड़ेगा इमीडिएट, कैंसिल ही नहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा इमरजेंसी। तो पता नहीं क्या क्या टूटेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक जा सकते हैं, ब्रेक हीट हो सकता है, ब्रेक फायर हो सकता है, वट एवर द थिंग्स मे बी। ठीक है, सो दैट इज अ रनवे इनकर्शन। रनवे इनकर्शन अगर हुआ है देन दैट इज अ मेडे केस। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल कमांड नहीं है आपको अपने जहाज पे। तो यू आर गोइंग टू मेक अ कॉल, जस्ट हैव अ लुक। मेडे मेडे मेडे, भोपाल टावर Akasa Air 789er on 123.5, present position on runway 29er, aborting takeoff due runway incursion, runway incursion, rating थोड़ी मैं अच्छी बनाता हूँ, runway incursion, one fuel tanker entered into runway ठीक है, this may be या फिर there may be a serious accident, there may be a serious accident या फिर it might be a serious accident, request investigation, जांच करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों आया एयरक्राफ्ट 798, क्यों आया एयरक्राफ्ट। गॉट इट? नाउ ये तो हो गया अबाउट योर कंडीशन की सिंपल कॉल। अब अगर आप टेक ऑफ एबोर्ट करते हो, आपको अपने ब्रेक्स की चिंता है, आपको अपने एयरक्राफ्ट की चिंता है, आपको एक्सीडेंट की भी चिंता थी, so how you can go, just have a look. Mayday, 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 Akasa, Bhopal Tower, Akasa Air 789er on 123.5, present position on runway 29er. अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड आंसर करता हूँ जिसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हैं, जस्ट हैव अ क्लोज लुक आउट, वेरी सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन ऑन रनवे 29er, साइटेड, हमेशा क्वेश्चन का शुरुआत ऐसे करना कि देखा मैंने, sighted one fuel tanker entered into runway, aborting takeoff, takeoff रोक रहा हूं। ठीक है, vacating the runway via taxiway link Lima 3। रिमेंबर taxiway link क्या हुआ था? टैक्सी टू रनवे के बीच में जो छोटा सा कॉरिडोर होता है, इसको कई बार टैक्सीवे लिंक बोल दिया जाता है। ठीक है, विकेटिंग द रनवे वाया टैक्सीवे लीमा 3, टैक्सीवे लिंक लीमा 3, रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज एंड
investigation team to monitor the brakes condition and request a full investigation. There may be a serious accident. Akasa Air 798. पता चल रहा है how the pilot is reporting everything. Now, अब आप बोलोगे सर ये सब इतना लंबा लंबा लैंग्वेज बना के कैसे रिपोर्ट कर रहे हो? Yes, I told कि यूजिंग सिंपल इंग्लिश ग्रामर पायलट को जो सुटेबल लगे वो रिपोर्ट कर सकता है. साइटेड वन फ्यूल टैंकर, ठीक है, एंटर्ड रनवे. अचानक से आपने देखा कि फ्यूल टैंकर आ गया, तो आपने क्या किया? सबसे पहले टेक ऑफ अवॉर्ड किया, फिर रनवे खाली कर रहे हो वाया लीमा 3 से, रिक्वेस्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज. क्यों? क्योंकि आपको सस्पेक्ट है कि ब्रेक्स में कहीं फायर ना हो जाए, इमीडिएट ब्रेक मारे हो फुल स्पीड में. रिक्वेस्ट फुल इन्वेस्टिगेशन बिकॉज दैट मे बी अ सीरियस एक्सीडेंट. अकाशा एयर 789er. तो एक पायलट अपने कंडीशन के हिसाब से जो जो सोचता है वो सब रिक्वेस्ट कर सकता है इन हिज कॉल. एंड ऑल दीज आंसर टाइप्स आर वेरिएबल्स. ये सब चेंज हो सकते हैं. आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो कुछ लगता है अप्रोप्रिएट आप आंसर करो. If that is a simple English grammar and based on the thought as a pilot, that will be acceptable. जरूरी नहीं है कि जो मैंने आंसर किया है इसी को कॉपी करने की कोशिश करो. नो, आप अगर सोच सकते हो कि एक पायलट क्या क्या रिस्पॉन्स लेगा, इन दिस केस यू कैन रिपोर्ट अकॉर्डिंगली. यू आर फ्री. आपके मन में कुछ और लैंग्वेज बनता है, कुछ और लैंग्वेज यूज करो. कल के बाद से जब भी प्रैक्टिस करेंगे, वट एवर यू कैन थिंक यू कैन गो अहेड विद द आंसर. आरटी में जब भी सिंपल कॉल्स होते हैं उसमें किसी एक टाइप का आंसर नहीं हो सकता है. एवरी थॉट्स आर अप्रिशिएबल. आपको जो अच्छा लगता है आप मुझे बताओ, अगर वो सही है आई विल गिव यू अ गो अहेड साइन. तो पायलट अपने एस्पेक्ट से जो सब कुछ सोच सकता है कि टेक ऑफ अवॉइड करूंगा तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ऑल द थिंग्स शैल बी रिपोर्टेड थ्रू द कॉल. ठीक है. दूसरी बात, सपोज आप बोलो कि सर अगर हम इतना सब कुछ आंसर में रिपोर्ट नहीं करें तो, जैसा आपने पिछला कॉल दिया सिर्फ 4 लाइन का था, इससे इमीडिएट पहले जो मैंने कॉल दिया था कि रिक्वेस्ट फुल इन्वेस्टिगेशन अवॉइडिंग टेक ऑफ, तो कुछ नहीं 10 नंबर का आंसर होता है. अगर आप सारे एस्पेक्ट सही सही रखोगे, एक पायलट ऑल अराउंड थिंकिंग का यूज करेगा. ठीक है, ऑल अराउंड थिंकिंग का यूज करेगा तो 10 नंबर मिलेंगे. कम करोगे 6-7 मिलेंगे. बस इतना ही अंतर है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. You want to practice much as per all round inspections or you just want to stick to the point. अगर आप सब कुछ सोच के एक समझदार पायलट की तरह रिस्पॉन्स करोगे 10 में 10 नंबर मिलेंगे. मेन मुद्दे से सिर्फ कॉल रिपोर्ट करके हट जाओगे 2-3 नंबर कम हो जाएंगे. दैट्स ऑल. Confirm if this is if you all have understand all these things. समझ में आया सब कुछ everyone? Yes, sir. All these things are very simple. अभी हो सकता है आपको टफ लगे कि इतना सब कुछ कैसे सोचूंगा, कि टेक ऑफ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना सब कुछ कैसे याद रहेगा. हो सकता है यस, मेनी वन ऑफ यू आर थिंकिंग कि धीरे धीरे टफ बनाते जा रहे हो सर. हाउ अ पायलट कैन कमांड these things or how as a student I'll have a command on this. Trust me, कैसे आपको इसके ऊपर कमांड हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा. एंड वो कहाँ से होगा? प्रैक्टिस से. जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, जैसे ही आप सॉल्व आंसर क्वेश्चन देखोगे, उसके आंसर को समझने की कोशिश करोगे, आप भी उसी टाइप का आंसर बनाने लग जाओगे. ट्रस्ट में. आप ये देखोगे कि पहले अगर किसी ने आंसर किया हुआ है, व्हाट वेयर दोज एस्पेक्ट्स, उसी पे जब आप प्रैक्टिस करोगे 3 बार 4 बार, आप भी उसी टाइप का आंसर करने लग जाओगे. ठीक है.
So need not to worry and don't be overthinking over this point. कि सर इतना सब कुछ तो अभी भारी लग रहा है, नहीं, हो सकता है अभी टफ लग रहा हो, यस आई एग्री टोटली, बट इट इज नॉट दैट टफ जो आपको अभी लग रहा हो। आप प्रैक्टिस करोगे, दीज आर द वेरी इजी पॉइंट्स, कुछ नहीं। Am I clear till now? Everyone? ठीक है, ये सब इजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। फर्स्ट डे पे एक और लोकेशन डेजिग्नेटेड टफ लग रहा था, नाउ दैट इज वेरी इजी। फ्लाइट प्लान, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया जुलू नवंबर, but planning a flight is nowadays very easy for Lima Kilo Kilo. Since past 3 and 4 classes I am observing, now Lima Kilo Kilo is making a flight plan very easily. So this thing also will be easy for you, trust me. अभी टफ लग रहा हो, प्रैक्टिस करो, टाइम दोगे पक्का इजी होगा, टाइम नहीं दोगे तो टफ लगता चला जाएगा। Then okay, and don't be worried, as I told before starting in the initial days of this lecture, because there are very few students, so I can easily observe कि किसके लिए क्या टफ कर रहा है, किसके लिए क्या इजी हो रहा है। I can observe, I can introspect into that. मेरे को पता चल जाता है कि किसको कौन सा टफ लग रहा है, ठीक है। So whenever I feel कि this portion is getting tough for you, I'll make you understand and I'll take you to the easy level, don't worry. But अभी अपने से प्रैक्टिस करिए, अपकमिंग डेज में वो एनालाइज कर लूंगा मैं कि कहाँ पे क्या टफ लग रहा है किसको। Then, so these are the some of the calls, ठीक है, which can be found when you are on ground. Apart from this, there are some more practice level calls. Practice levels call क्या होते हैं? Just have a look. क्या होता है? Some of you are working in schedule and some of you are working in non-schedule. But both of you might have seen pilot का होता है pilot proficiency check. ठीक है? All the pilots are having pilot's proficiency check. What it means? क्या होता है? There is a certain condition. I am not recalling it perfectly, but एक तो कुछ तो condition होता है कि if any pilot is not operating at least 80 hours या 90 hours, क्या मुझे पता नहीं, at least 80 hours in 3 months, तो उसको जाना पड़ता है पायलट प्रोफिशिएंसी चेक के टेस्ट से, एक टेस्ट देना पड़ता है, पायलट प्रोफिशिएंसी चेक। इसमें कुछ नहीं होता है, दिस चेक इज वेरी सिंपल। क्या होता है कि यू नीड टू सिट अलोंग साइड विद अ पायलट इन कमांड, ठीक है, एक पायलट इन कमांड के साथ आपको बैठना पड़ता है और एयरक्राफ्ट को फ्लाई करके दिखाओ। अगर आप अच्छे से फ्लाई कर देते हो, then pilot in command is signing your PPC check. Yes, you are proficient yet. दो आपने पिछले 3 महीने में फ्लाई नहीं किया है, लेकिन आपका पायलट का स्किल कम नहीं हुआ है, so you can operate commercial aircraft now also. So that is pilot proficiency check. And many a times such checks or such trainings are getting involved in a commercial flying as well. कॉमर्शियल फ्लाइंग के साथ साथ ये ट्रेनिंग कंप्लीट करवा दिया जाता है, अलग से उसको वापस से खाली एयरक्राफ्ट नहीं दिया जाता है। कैसे? सपोज एक पायलट का क्या कहते हैं ट्रेनिंग ड्यू है, किस टाइप का ट्रेनिंग ड्यू है, उसको हमने कभी लो पास फ्लाइंग क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये पायलट 500 फीट पे रनवे के ऊपर एयरक्राफ्ट फ्लाई करके दिखाए। इस पायलट ने अपने लाइफ में कभी भी लो पास फ्लाइंग नहीं किया है, तो उसके लिए हम उसको अलग से एक खाली एयरबस 320 नहीं देंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो हमारे पास वैसे ही कम है, पायलट भी कम है। तो क्या करेंगे, सपोज हमारा भोपाल से मुंबई के लिए एक फ्लाइट प्लान रहा, तो इस पायलट को इसी कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले फ्लाइंग में बैठा देंगे कि जाओ इसी में अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। दिस इज द मोस्ट
usual things in the airliner if you have seen. Have you noticed such things ever? Anyone? ये सब नोट किया आपने कुछ कि छोटी मोटी ट्रेनिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी के साथ ही मर्ज कर दी जाती है? Is that so? Anyone? Let me know please. देखा ऐसा कुछ? प्लीज कंफर्म, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं कुछ ज्यादा एग्जांपल इंक्लूड करूंगा। ऐसा कभी कुछ आप सबने देखा है फील्ड पे? All stations, Chennai Tower, how do you read? Redo ओके, प्लीज कंफर्म कि ऐसा कुछ कभी नोटिस किया ट्रेनिंग वाला सिनेरियो ड्यूरिंग कमर्शियल एक्टिविटी ओनली? नहीं सर। नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, सो क्या होता है, बेसिक एस्पेक्ट मैंने समझाया। ट्रेनिंग पर्पस क्या है? ट्रेनिंग। दो पायलट मिलके एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, समथिंग इज नोन एज PIC एंड समथिंग इज नोन एज SIC, सेकंड इन कमांड, और फर्स्ट ऑफिसर बोलते हैं इसको कुछ लोग। अब सेकंड इन कमांड जो होता है, अगर इसका किसी भी टाइप का ट्रेनिंग ड्यू है, ठीक है, या किसी भी टाइप का फ्लाइंग चेक्स ड्यू है, तो उसको पायलट इन कमांड नहीं बनाया जा सकता है। डन? तो क्या करेगा, उसको पायलट इन कमांड के साथ बैठ के ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एक फ्लाइंग में, ठीक है। उसको किसी एक फ्लाइंग में फ्लाइट टेस्ट देना पड़ता है। उस फ्लाइट टेस्ट को जनरली PPC बोला जाता है, पायलट प्रोफिशिएंसी चेक, कि आप दिखाओ कि आप कितने प्रोफिशिएंट पायलट हो। सो such checks, such training, such examinations is being merged with commercial activity only, ठीक है। तो सपोज एक क्वेश्चन है, देखो, नॉट ए प्रॉब्लम, समझ जाओ। आई जस्ट नीड टू एलैबोरेट मोर, यू विल ऑल गेट इट, डोंट वरी। The condition is you want to practice, okay, you want to practice low pass flying before setting course to destination। क्या वो उसका मतलब हुआ कि आपका एक प्लान है कि भोपाल से मुंबई जाओ। तो आप क्या करोगे, आपने जैसे ही टेक ऑफ किया, डायरेक्ट मुंबई के लिए रास्ता नहीं चूज करोगे। सपोज दिस इज द रूट फॉर मुंबई, ये जो मैं डीप लाइन बना रहा हूं, तो आप मुंबई के लिए डायरेक्ट रूट कैप्चर नहीं करोगे। आपने टेक ऑफ किया, वापस ATC ज्वाइन किया, घूम के फाइनल्स पे आए और रनवे के ऊपर 500 फीट पे टेक ऑफ किया, गो अराउंड प्रैक्टिस किया, ठीक है। फिर टेक ऑफ करने के बाद दूसरे बार में आप मुंबई वाले रूट को पकड़ लोगे, ठीक है। समथिंग इज नोन एज टच एंड गो लैंडिंग, TGL, टच एंड गो लैंडिंग। एयरक्राफ्ट आएगा, टच करवा के फिर से उड़ा ले जाएगा। इस सब में क्या होता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है। किसको? सेकेंड इन कमांड वाले को, को पायलट को। आओ एक बार गो अराउंड करना सीख लो इस एयरक्राफ्ट में, आओ एक बार लो पास फ्लाइंग करना सीख लो, ताकि जब तुम्हारे ऊपर कभी भी प्रेशर आए तो यू नो कि हाउ टू डू अ लो पास फ्लाइंग, हाउ टू डू अ टच एंड गो लैंडिंग। या फिर पायलट्स के कुछ जो आवर्स होते हैं उसमें लैंडिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, टेक ऑफ नहीं, लैंडिंग। 10 लैंडिंग उसने किया है कि नहीं, 12 लैंडिंग उसने किया है कि नहीं, तो उसको टच एंड गो लैंडिंग का प्रैक्टिस करवाया जाता है। एयरक्राफ्ट पायलट इन कमांड रनवे पे लाएगा, लैंड नहीं करवाएगा, टच करवा के फिर से टेक ऑफ करवा लेगा, फिर से लैंड करवाएगा, फिर से टेक ऑफ करवा लेगा। तो ये सब करवाया जाता है ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सच ट्रेनिंग्स आर मर्ज्ड विद द कमर्शियल एक्टिविटी। अलग से खाली जहाज नहीं मिल पाता है उसको, क्योंकि एयरक्राफ्ट का वैसे ही शॉर्टेज है। तो कमर्शियल फ्लाइंग के साथ ही आपके ट्रेनिंग्स को मर्ज कर दिया जाता है। तो सपोज आपको एक प्लान करना था, क्या? लो पास फ्लाइंग।
कैसे करोगे? अब लुक कैसे करेंगे देखते हैं। भोपाल टावर Akasa Air 7908 on 123.8 5, sorry, 123.5. Airbus 320 IFR Bhopal to Chennai. Present position on apron 3 stand 8. ये आपका रहा करंट पोजीशन। अब would like to, इस टर्म को अच्छे से सब लोग समझो। जब भी हम कुछ इंटेंशन दिखाते हैं दैट टाइम वी आर सेइंग would like to, would like to carry out low pass flying at 500 feet on runway 28. Then set course to destination. Request permission. Akasa Air 798. एक चीज और ऐड कर लेना, would like to carry out low pass flying for training purpose, मेन चीज। ठीक है, अच्छे से समझो। would like to carry out low pass flying, हम चाहते हैं कि रनवे के ऊपर एक लो पास फ्लाइंग करूं। क्यों? ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ट्रेन करना है अपने को पायलट को। एट 500 फीट, जमीन से 500 फीट ऊपर, रनवे 28 के ऊपर। देन सेट कोर्स टू डेस्टिनेशन, जब ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तब हम वापस मुंबई वाला रास्ता पकड़ लेंगे। रिक्वेस्ट परमिशन, इसका परमिशन दीजिए। इज दैट क्लियर? Clear, sir. Okay. Suppose there is a question, you want to carry out touch and go landing. आप चाहते हो कि अपने को पायलट को सिखाओ कि टच एंड गो लैंडिंग किया कैसे जाता है। So how that will go? Just have a look. Simple. You want to practice touch and go landing. ये सब किस चीज के लिए है? ट्रेनिंग पर्पस के लिए। You want to practice touch and go landing. How that will go? Just have a look. Very simple. Bhopal Tower, Akasa Air 798 on 123.5. Airbus 320 IFR Bhopal to Chennai. Current position on, current position आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज आप टैक्सी कर रहे हो, आप एप्रोन पे हो, उसी टाइम आपने रिक्वेस्ट कर लिया, बिकॉज दीज रिक्वेस्ट आर द एडिशनल रिक्वेस्ट। करंट पोजीशन ऑन टैक्सी विद चार्ली। वुड लाइक टू, मैं चाहता हूं। परफॉर्म, वुड लाइक टू परफॉर्म टच एंड गो लैंडिंग, TGL, टच एंड गो लैंडिंग ऑन रनवे 29er for training purpose. Then set course to destination. Request permission. Akasa Air 798. ठीक है, क्या मतलब हुआ? जब मैं टेक ऑफ करूंगा तो ये मत सोचना कि मैं चला गया, नो, मैं वापस घूम के आऊंगा और टच एंड गो लैंडिंग करूंगा। और जब ये हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तब मैं वापस अपने रास्ते से डिपार्ट करूंगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया हाउ सिंपल दिस इज? Yes, sir. वेरी गुड।
So these are the some of the things. चलो एक और लास्ट ट्रेनिंग पर्पस से क्या है? You want to practice about abandoning takeoff. ठीक है, you want to practice aborting takeoff या abandoning takeoff exercise. आप चाहते हो कि अपने को पायलट को सिखाओ कि टेक ऑफ अबॉर्ट कैसे करते हैं. उड़ाना तो बहुत सिखाया, अब मना करना सिखाता हूँ कि फ्लाइट कैंसिल कैसे करना है. ठीक है, सो यू विल मेंशन हाउ. पोजीशन कुछ भी हो सकता है. भोपाल टावर आकाशा एयर 708 ऑन 123.5 एयरबस 320 IFR Bhopal to Chennai. Current position on correction. Lined up for departure. अभी हम कहाँ पे हैं? रनवे पे ही आ गया डायरेक्ट, एप्रॉन पे नहीं. Lined up for departure on runway 28. रनवे 28 पे ही खड़ा हो गया हूँ डायरेक्ट. Would like to, क्या चाहते हो भैया? परफॉर्म, हाँ क्या? एबोर्टिंग टेक ऑफ एक्सरसाइज. मैं चाहता हूं कि ये परफॉर्म करूं कि टेक ऑफ अबॉर्ट कैसे करते हैं. रिक्वेस्ट परमिशन. अभी अगर मैं अपना टेक ऑफ अबॉर्ट करूं तो ये मत सोचना कि कुछ गड़बड़ हो गया, मैं ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए कर रहा हूं. डन. These are the things you want to do. But हर किसी में मेंशन जरूर करना फॉर ट्रेनिंग पर्पस. ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ट्रेनिंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ. अब क्या है, मूवी में सपोज एक विलन ने एक्टर को गोली मार दी, तो मूवी में तो दिखता है कि वो मर गया, लेकिन रियल लाइफ में क्या वो मर जाता है? नो, क्योंकि एक्टिंग कर रहा है वो. सिमिलरली आप टेक ऑफ अबॉर्ट कर रहे हो, क्या ये सीरियस केस है? नो. मैं पैन भी बोलूंगा, क्योंकि जब अबॉर्ट टेक ऑफ आप सिखाओगे अपने को पायलट को, तो आप पैन बोल के सिखाओगे, उसको रियल फील कराओगे कि हाउ दिस अबॉर्टिंग टेक ऑफ इज बीइंग कंप्लीटेड. तो अभी मैं जो पैन बोलूंगा, सीरियस मत हो जाना, ये सब एक ट्रेनिंग है. ठीक है, दीज ऑल आर प्रैक्टिसेस. कैसे? जब हम ELT चेक करते हैं तो पहले ही बोल देते हैं, क्या कहते हैं, ATC को, कि अभी अगर 1 to 1.5 पे कोई मैसेज आए तो पैनिक मत हो जाना, ये मैं ऑन कर रहा हूं एंड दिस इज फॉर सिमुलेशन, टेस्टिंग है ये. सिमिलरली कुछ भी काम कर रहे हैं आप ट्रेनिंग पर्पस से इन्फॉर्म करके, और लास्ट में क्या मांगना है? रिक्वेस्ट परमिशन. दिस इज फॉर ट्रेनिंग पर्पस. इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. So these are the some more things that you can perform on ground. All these cases are related to ground. कि ग्राउंड पे क्या क्या हो सकता है, ये सब ग्राउंड पे ही होगा. आप एक बार टेक ऑफ कर गए तो थोड़ी ना वापस पूछ के आओगे कि हम प्रैक्टिस भी करना चाहते थे, गलती हो गया सर, वापस लैंड कर रहा हूँ फिर से. नहीं, जितना तमाशा करना है पहले ही कर लो. एक बार आपने फाइनली ATC को ये इन्फॉर्म कर दिया कि अब मैं मुंबई के लिए रवाना हो चुका हूं, तो घूम के फिर मत आना, नहीं तो उसको एयर टर्न बैक काउंट कर लूंगा और पायलट को अलग से परेशान करूंगा 1 घंटे. ठीक है, तो जब तक आप ग्राउंड पे हो, जितने टाइप के आपके अंदर में इच्छाएं हैं, आप चाहते हो कि एयरक्राफ्ट हवा में उड़ा के तुरंत जमीन पे ले आओ, जो करना है कर लो. ठीक है, सो दीज आर द ग्राउंड या एप्रॉन रिलेटेड कॉल्स where you want to perform certain kind of practices, certain kind of exercises. All these are for training purposes. ठीक है, बस आपके कॉल में एक चीज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ताकि वो डरे नहीं. सडनली एयरक्राफ्ट ब्रेक मार के रनवे में घुस जाएगा तो ATC पैनिक हो जाएगा. ऐसा क्यों किया? सो यू नीड टू मेक हिम अवेयर एंड विद द परमिशन ओनली. बिना परमिशन के तो करना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू? लेट मी नो.
Yes, sir. ओके नाउ अभी बस एक सिनेरियो देखता हूं, उसके बाद हम आज का कॉल खत्म कर देंगे। देन आई लीव अप टू यू कि आप जितना ज्यादा और ग्राउंड या एप्रोन के कॉल प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा सीखोगे। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट वन मोर एग्जाम्पल। द क्वेश्चन इज यू हैव lined up for departure on runway 28। क्या करोगे आंसर बताओ। रनवे 28 पे खड़े हो गए, अब क्या बोलोगे एटीसी को। कल हमने देखा कंप्लायंस विद द टैक्सी इंस्ट्रक्शंस में कि कैसे अप्रोन से एक एक टैक्सी वे को रिपोर्ट करते हुए आप रनवे होल्डिंग पॉइंट तक आए। रनवे होल्डिंग पॉइंट पे आने के बाद आपने पूछा रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस, तो एटीसी टावर ने कहा कि ठीक है लाइन अप ऑन रनवे 28, रनवे 28 पे जाओ, लाइन अप हो जाओ। अब क्या रिपोर्ट करोगे लाइन अप होने के बाद? कुछ आइडिया लग रहा है? क्या बताओगे एटीसी को? गिव मी आंसर एनीवन। Question is you have lined up for departure on runway 28. Try making answer. So let me give the answer. अभी क्या है, रनवे पे आपने अपने एयरक्राफ्ट को अलाइन कर लिया, अब डिपार्चर करना है, सो दैट विल कम टू यू राइट। भोपाल टावर रनवे पे हो तो कॉल बाय डिफॉल्ट वैसे भी टावर को ही जाएगा, भले वहां पे ग्राउंड अवेलेबल हो तो भी। Akasa Air 798 on 123.5. Current position on runway 28. Lined up for departure. Aircraft ready for takeoff. वर्ड क्या मेंशन किया? टेक ऑफ। अभी तक हम लोग क्या मेंशन कर रहे थे? डिपार्चर। डिपार्चर एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर। रिक्वेस्ट क्लियरेंस। टेक ऑफ के लिए आपको क्लियरेंस चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस आपको लगा के दे कि आफ्टर टेक ऑफ क्विकली climb to the 7,000 feet. After takeoff, take a left turn immediately at 500 feet. टेक ऑफ का क्लियरेंस मांगेंगे क्योंकि सर्टेन कंडीशन आ सकता है। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी टर्म देखे हर बार मेंशन करता था एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर, रेडी फॉर डिपार्चर। यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया? रेडी फॉर टेक ऑफ। इसका क्या मतलब है? डिपार्चर में एसोसिएट, ठीक है, some other movement of aircraft, taxi, ठीक है, ground movement, line up, turning, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। तो डिपार्चर में काफी सारे ग्राउंड मूवमेंट इंक्लूड होते हैं, बट टेक ऑफ में हमेशा एयरक्राफ्ट धरती छोड़ के ऊपर भागेगा, ठीक है। तो व्हेन यू रीच टू द रनवे, अब आप बोलोगे एयरक्राफ्ट रेडी फॉर टेक ऑफ, डोंट से एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर, ठीक है। अब हम एयरक्राफ्ट को हवा में ले सकते हैं। डिपार्चर इंक्लूड्स ऑल द ग्राउंड मूवमेंट, टैक्सिंग, बैक ट्रैकिंग, लाइनिंग अप, टर्निंग, बट टेक ऑफ डायरेक्ट हवा में जाने की बात करता है। यानी यू टेक योर एयरक्राफ्ट ऑफ फ्रॉम द अर्थ, दैट इज नोन एज टेक ऑफ, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि आई हैव टेकन ऑफ माय पेन बैक, मैंने अपना कलम वापस ले लिया। सेम आप अपने एयरक्राफ्ट को धरती से ऊपर ले गए, टेक ऑफ, so that is known as takeoff. So आपने बोला land up for departure, aircraft ready for takeoff, request clearance। इसके रिप्लाई में अगर सब कुछ ओके है तो टावर बोलेगा क्लियर फॉर टेक ऑफ। टावर ने बोला क्लियर फॉर टेक ऑफ, दैट इज अ परमिशन, आपको भी रिपीट करना पड़ेगा क्लियर फॉर टेक ऑफ, एंड देन यू विल स्टार्ट टेक ऑफ रन and you can further take off. During takeoff, no gossips, silent.
एक बार आपने टेक ऑफ रन स्टार्ट कर दिया तो अब कोई बातचीत नहीं होगी, हम अपना एयरक्राफ्ट हवा में ले जाएंगे, other than any made or turn situation. So till the time you haven't heard the word clear for takeoff, आप डिपार्ट नहीं करिए। भले वो बोले क्लियर फॉर डिपार्चर, नहीं, हमको क्या सुनना है, क्लियर फॉर टेक ऑफ। एटीसी भी बोलेगा क्लियर फॉर टेक ऑफ, आपको भी रिपीट करना है क्लियर फॉर टेक ऑफ। सॉरी, एज ए स्टेशन आपको भी रिपीट करना होगा क्लियर फॉर टेक ऑफ। देन म्यूचुअली if you share the clear for takeoff statement, then only you can take off your aircraft. Am I clear? तो कब तक हम डिपार्ट नहीं कर सकते, जब तक हमने ये नहीं सुना कि क्लियर फॉर टेक ऑफ। Am I clear everyone? क्लियर सर। ठीक है, तो एटीसी भी बोलेगा क्लियर फॉर टेक ऑफ, आप भी रिपीट करो क्लियर फॉर टेक ऑफ एंड देन स्टार्ट टेक ऑफ रन। तो जब तक हमको क्लियर फॉर टेक ऑफ नहीं सुनाई दिया, हम टेक ऑफ नहीं करेंगे। क्लियर फॉर डिपार्चर, क्लियर फॉर मूवमेंट, क्लियर फॉर टैक्सी, नो, ओनली क्लियर फॉर टेक ऑफ विल अलाउ अस फॉर टेक ऑफ। नहीं सुनाई दिया, नहीं जाएंगे। 2 बार 3 बार पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर है। Now I am just explaining one scenario and then I'll finish this session today. The scenario is आप रनवे पे आ गए, इसके बाद आप टेक ऑफ रन करोगे, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया, सपोज इधर से आपका रूट है, तो वापस क्रॉस विंड डाउन विंड होते हुए आप अपने रूट को पकड़ के चल दिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने सारे कंडीशन देखे, क्या देखे, एप्रोन पे क्या क्या घटना हो सकती है, ड्यूरिंग टैक्सी वे क्या क्या हो सकता है, रनवे पे क्या क्या हो सकता है। कल हम लोग देखेंगे व्हाट आर द सिचुएशंस दैट में अराइजेस ड्यूरिंग इनिशियल क्लाइंब। ये सब कंडीशन इनिशियल क्लाइंब के हैं। आफ्टर टेक ऑफ, ड्यूरिंग इनिशियल क्लाइंब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि ग्राउंड पे यहाँ आग लग गई, यहाँ पे बर्ड घूम रहा है, आपके सामने बर्ड घूम रहा है, रनवे पे आ गए, आंख चौंधिया गया, विजिबिलिटी कम हो गया, ब्रेक्स हॉट हो गया, किसी एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है, किसी एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट ने टक्कर मार दी, आपने किसी को अपने एयरक्राफ्ट के नीचे दबा दिया। ठीक है, तो दीज वेयर द सिनेरियो। या फिर आपको क्या करना है, आपको ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी थी, तो परमिशन आपने ग्राउंड पे ही मांग लिया, टेक ऑफ करने से पहले ही आपने परमिशन मांग लिया कि हमको एक मौका दिया जाए प्रैक्टिस करने का, एक्सरसाइज करने का। तो these were the situations which were arising when you were on ground, when you were on the apron. कल हम लोग देखेंगे आफ्टर टेक ऑफ क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं और उस टाइम पे क्या क्या बात होता है एटीसी और पायलट के बीच में। Clear so far? Is that good to go ahead then? Shall I close the meeting for today? यस सर। पक्का सबको सारा कंडीशन समझ में आया? इंडिया जुलाई नवंबर, योर लोन वॉइस मींस लोन एनर्जी। बोरिंग हो रही थी क्लास में, क्या था? लेट मी नो क्लियरली, डोंट वरी, so that I can improve something. What was the scenario during class? Yes, no, anything? Don't worry, I am open to feedback. Don't worry, you can tell clearly, ताकि मैं improve करूंगा next time से। दिमाग किलो किलो, what was that? कहीं कहीं बोर हो रहे थे किसी किसी टॉपिक पे? नहीं सर। या नहीं कुछ कुछ सर। स्टफ जा रहा था? नो। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हो रहा you are open, don't worry, because I can understand कि these things are new to you and for every person something, if something comes new तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट आई विल मेक श्योर कि आपको समझ में आ जाए। एक बार पढ़ा के, 2 बार प्रैक्टिस करवा के, 3 बार पूछ के, थोड़ा सा डांट डपट के, जैसे भी हो, आई विल मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो अभी तक हमने ग्राउंड्स के कॉल देखे, कल हम लोग देखेंगे इनिशियल क्लाइंब्स के कॉल। ठीक है, बट ऐसा मत सोचना कि अगर हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया तो कल मैं आपसे ग्राउंड वाला कॉल नहीं पूछ सकता हूँ, नहीं। कल ग्राउंड वाले कॉल या एप्रन वाले कॉल्स भी I can have as a practice.
सो सब कुछ साथ में लेके चलना है टिल द एंड। तो गुड नाइट फॉर टुडे। कल दिन में टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, थोड़ा सा जस्ट हैव अ क्विक आई ऑन द क्लास स्लाइड्स। ठीक है, वहां पे जो भी एग्जांपल्स दिए हैं उसको समझिए, पढ़िए। आज हमने जो बताया, आपने जो नोट में लिखा होगा उसको भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। धीरे धीरे करके हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे टू आवर मोर टॉपिक्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम क्लोजिंग द सेशन। Yes, Good anything you night. have to ask? Okay, good night, sir. Okay, then. Good night, everyone. We'll see you tomorrow, same 9 o'clock. Done? Copy. Okay.